سب سے اچھی اور سب سے سستی خدمات دینے کے باوجود ہم آپ کے لیے صرف 20 روپے میں ایک ہیلتھ کارڈ لائے ہیں، جس سے آپ ڈاکٹر کی فیس اور ہر طرح کی جانچ پر 20% کی چھوٹ پانے کے ساتھ ساتھ دواؤں پر بھی 20% تک کی چھوٹ پائیں گے۔ آج ہی رابطہ کریں۔ وی کیئر پولی کلینک، ڈائگنوسٹک و فارمیسی، نیپیر روڈ، نزد الماس میرج ہال۔ کانٹیکٹ نمبر 0522 3553 موبائل نمبر 8299575013۔ ناظرین آداب، 18 فروری 2021 مطابق 5 رجب المرجب کے اودنامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اودنامہ میں شائع اہم خبروں کے مطابق سپریم کورٹ نے لو جہاد قانون کو چیلنج کرنے والی عرضی میں جمعیت العلماء ہند کو بطور مداخلت کار تسلیم کر لیا ہے۔ جمعیت العلماء ہند کے صدر مولانا سید ارشد مدنی نے اسے جمعیت کی کامیابی قرار دیتے ہوئے کہا کہ آئین مخالف قانون کے خلاف ہماری جد و جہد جاری رہے گی۔ قبل ازیں سماعت پر عدالت نے مرکزی اور ریاستی حکومت کو نوٹس جاری کیا تھا۔ عدالت نے ایڈوکیٹ آن ریکارڈ اعجاز مقبول سے پوچھا کہ اس معاملے میں جمعیت العلماء ہند کا مفاد کیا ہے اور وہ کیوں مداخلت کار بننا چاہتے ہیں، جس پر اعجاز مقبول نے انہیں بتایا کہ لو جہاد قانون کے ذریعے ایک بڑی تعداد میں مسلمانوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے اور یہ سلسلہ جاری ہے، لہٰذا مسلمانوں کے خلاف بنائے گئے اس غیر آئینی قانون کو ختم کرنے کے لیے داخل پٹیشن میں وہ بطور مداخلت کار بننا چاہتے ہیں تاکہ عدالت میں اس تعلق سے اپنا موقف پیش کر سکیں۔ سماعت کے بعد چیف جسٹس نے جمعیت العلماء ہند کو بطور مداخلت کار تسلیم کر لیا۔ اسی درمیان چیف جسٹس آف انڈیا کی سربراہی والی 3 رکنی بینچ، جس میں جسٹس اے ایس بوپنا اور جسٹس وی راما سبرامنیم نے سٹیزن فار جسٹس اینڈ پیس نامی آرگنائزیشن کو ان کی پٹیشن میں ترمیم کرنے کی اجازت دیتے ہوئے معاملے کی سماعت 2 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ شاید دوسری خبر میں امروہہ کی رہنے والی شبنم نے اپریل 2008 میں عاشق سلیم کے ساتھ مل کر کلہاڑی سے کاٹ کر اپنے 7 اہل خانہ کا بے رحمی سے قتل کر دیا تھا۔ معاملے میں قصوروار قرار دیے جانے کے بعد شبنم اور سلیم نے پھانسی کی سزا کے خلاف سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا، لیکن سپریم کورٹ نے پھانسی کی سزا برقرار رکھی تھی۔ اب صدر نے بھی اس کی رحم کی درخواست کو خارج کر دیا ہے، لہٰذا آزادی کے بعد شبنم پہلی خاتون قیدی ہوں گی جسے پھانسی کی سزا دی جائے گی۔ درگاہ اجمیر شریف میں خواجہ معین الدین چشتی کا 809واں سالانہ عرس کے موقع پر افغانستان کے صدر اشرف غنی نے بھی خواجہ غریب نواز کے آستانے کے لیے چادر روانہ کی ہے۔ صدر اشرف غنی نے پیغام ارسال کیا ہے کہ خواجہ غریب نواز کی تعلیمات کو دنیا بھر میں سنا اور سمجھا جانا چاہیے۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں 100 روپے کے ہندسے کو عبور کر گئی ہیں۔ مسلسل 90 روز کے اضافے کے بعد وزیر اعظم نے اس بڑھوتری پر بیان دیتے ہوئے کہا کہ اگر سابقہ حکومتوں نے توانائی کی درآمد پر انحصار پر توجہ دی ہوتی تو متوسط طبقے کو اتنی مشکلوں کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ ایندھن کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کا ذکر کیے بغیر انہوں نے کہا کہ 2019-20 میں بھارت نے اپنے گھریلو مطالبات کو پورا کرنے کے لیے 85% تیل اور 53% گیس درآمد کی ہے۔ وہیں وزیر اعظم کی صدارت میں ہونے والی کابینی اجلاس میں ہندوستان اور ماریشس کے درمیان وسیع مالی تعاون اور شراکت داری کے معاہدے پر بھی مہر لگا دی گئی ہے۔ ہندوستان ماریشس CECPA پہلا تجارتی معاہدہ ہے جو افریقہ کے کسی ملک کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اس معاہدے میں اشیاء کی تجارت، سروسز میں کاروبار، تجارت میں تکنیکی رکاوٹوں، صفائی کے منصوبوں، تنازع کا نپٹارہ، شہریوں کی آمد و رفت، ٹیلی کام، مالیاتی خدمات، کسٹم ڈیوٹی عمل اور دیگر شعبوں میں دونوں ملکوں کے درمیان تعاون قائم کیا جائے گا۔ حسین آباد گورنمنٹ کالج کے شعبہ اردو کے زیر اہتمام گوشہ فارغ کا افتتاح اور ماہنامہ حکیم الامت کے ڈاکٹر قلب صادق نمبر کا اجرا آیت اللہ سید حمید الحسن اور آفتاب شریعت مولانا سید قلب جواد نقوی نے مشترکہ طور پر کیا۔ نظامت کے فرائض ڈاکٹر مرزا شفیق حسین شفق نے انجام دیے۔ مولانا سید حمید الحسن نے حسین آباد گورنمنٹ کالج کی تاریخ بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک تاریخی اور ملی اثاثہ ہے، اس کی تعمیر میں بزرگ علماء نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ مولانا نے کہا کہ ڈاکٹر قلب صادق میرے عظیم ترین دوست تھے، ان کے جیسی شخصیت صدیوں میں پیدا ہوتی ہے۔ میں ڈاکٹر ظفر حیدری کو بھی خصوصی شمالے کی اشاعت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ قائد ملت مولانا قلب جواد نقوی نے کہا کہ فارغ سیتاپوری رسائی ادب کے اہم ترین شعراء میں ہیں، ان کے نام پر ادبی گوشہ قائم کرنا ایک قابل فخر کارنامہ ہے۔ مولانا قلب جواد نے حکیم الامت ڈاکٹر قلب صادق کی شخصیت کے مختلف ابعاد کو نمایاں کرتے ہوئے ماہنامہ حکیم الامت کے مدیر اعلیٰ ظفر حیدری کو مبارکباد پیش کی۔ پروفیسر شاہرخ غلوی نے کہا کہ فارغ میر انیس کے حلقہ تلامذہ میں سب سے ممتاز شاعر تھے۔ معروف اسلامی اسکالر خان محمد عاطف نے کہا کہ ڈاکٹر قلب صادق میرے پسندیدہ خطیب تھے، ان کی تقاریر اتحاد بین المسلمین کی علم بردار تھیں۔ لکھنؤ شہر کے میئر سنگیتا بھاٹیہ نے کہا کہ لکھنؤ تہذیب
तहजीब और अदब का मरकज है और हुसैनाबाद गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ का एक कदीमी कॉलेज है। उम्मीद है कि वो इसी तरह अदबी तकारीब मुनक़िद करके हम सबको यकजा होने के मौके फराहम करते रहेंगे। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह ने कहा कि डॉक्टर कल्ब सादिक एक मिसाली शख्सियत थे। महनामा हकीमुल उम्मत का ये खुसूसी शुमारा उनके लिए बेहतरीन खिलाज है। महनामा हकीमुल उम्मत के मुदीर आला डॉक्टर जफर हैदरी ने कहा कि हकीमुल उम्मत को मेरे वालिद मोहतरम प्रोफेसर अकबर हैदरी ने दीन और अदब की खिदमत की निस्बत से जारी किया। मैं भी उसी जज्बे से काम कर रहा हूँ। डॉक्टर कल्ब सादिक से हमारे खानदानी रिश्ते थे। वो हकीमुल उम्मत के मुस्तकिल कारी थे। उनकी शख्सियत हमजिहत थी। इसे एक खुसूसी शुमारे में पेश नहीं किया जा सकता। मैंने हकीमुल उम्मत के तवस्सुस से हैदरी फैमिली की तरफ से उन्हें एक मामूली सा खिराज पेश किया है। अमान अब्बास मुदीर सहाफत ने हकीमुल उम्मत नंबर के ताल्लुक से कहा कि डॉक्टर जफर हैदरी ने डॉक्टर कल्ब सादिक पर खुसूसी शुमारा निकालकर उन्हें बेहतरीन खिराज पेश किया है। ऑल इंडिया अक़लियती कमीशन के साबिक चेयरमैन सैयद गयूरुल हसन रिजवी ने कहा कि फारूक सीतापुरी उर्दू मरसिये के मोतबर व मुस्तनद शायर हैं। अभी उन पर मजीद काम करने की जरूरत है। मशहूर गुलकारा सुनीता जिंगरन ने मोहम्मद वाले मोहम्मद की मदा में इंतहाई खूबसूरत और बामाना अशार सुनाए। उनकी मशहूर कुन आवाज ने सामईन पर सहज तारी कर दिया। इस मौके पर शहर निगारा के इल्मी व अदबी और सियासी व समाजी शख्सियात बड़ी तादाद में मौजूद थी। राजधानी लखनऊ में रिहाई मंच ने कहा है कि बीजेपी का मकसद CAA को नाफिज करके बड़े कारपोरेट घरानों को मुफ्त में मजदूर मुहैया करवाना है। इस कानून से सिर्फ मुसलमानों को परेशानी नहीं होगी बल्कि लाखों हिंदुओं को भी बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ये कानून सिर्फ वोट बैंक की सियासत के खातिर लाया गया है। रिहाई मंच के सदर एडवोकेट शोएब ने कहा कि उन्हें लगता था कि शहरियत तरमीमी कानून मसले पर सरकार बैकफुट पर जा चुकी है, लेकिन पहले बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा और अब वजीर दाखिला अमित शाह के बयान के बाद ऐसा लग रहा है कि बीजेपी अपने कदम वापस नहीं लेगी। बीजेपी हुकूमत का कहना है कि कोरोना वायरस का असर कम होते ही मुल्क में शहरियत तरमीमी कानून को नाफिज किया जाएगा। इस्लामी दुनिया की मुमताज शख्सियत और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना सैयद राबे हसन नदवी जो आजकल सख्त अलील हैं, उनकी अयादत के लिए कल सित्ते नूरी, मेराज हैदर और अम्मान नगरामी ने नजवे में हाजिरी दी। मौलाना राबे हसन नदवी ने मौलाना डॉक्टर कल्ब सादिक मरहूम की इल्मी और समाजी खिदमतों को खराज तहसीन पेश किया और बोर्ड के सिलसिले में उनकी खिदमत का एतराफ किया। मरकजी शिया चांद कमेटी के सदर मौलाना सैयद सैफ अब्बास नकवी ने हजरत अली के यौम विलादत पर आम तातील का मुतालबा करते हुए इस बाबत वजीर आजम नरेंद्र मोदी को खत लिखा है। मौलाना सैफ अब्बास नकवी ने एक बयान जारी करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी से अपील की है कि हजरत अली जो कि पूरी दुनिया के लोगों के लिए एक नमूने अमल है और उनका एहतराम हर कौम मिल्लत के अफराद करते हैं, लिहाजा हम वजीर आजम नरेंद्र मोदी से गुजारिश करते हैं कि वो अजीम शख्सियात की खिदमत का एतराफ करते रहते हैं और ये अजीम शख्सियात ने हजरत अली की हयात तय्यबा से दर्स लिया है। इसलिए 13 रजब विलादत हजरत अली के मौके पर पूरे मुल्क और तमाम सूबों में तातील आम का ऐलान करके सबका साथ और सबके विश्वास को मजबूती फराहम करें। मौलाना सैयद सैफ अब्बास नकवी ने कहा कि जैसा कि उत्तर प्रदेश की रियासत में एक दहाई से ज्यादा हो गया है कि हजरत अली की विलादत पर तातील रहती है, इसी ज़िम्न में इस साल हजरत अली की विलादत 13 रजब 1442 मुताबिक 26 फरवरी 2021 बरोज जुमे को है। मौलाना सैयद सैफ अब्बास नकवी ने मुस्लिम कायदीन और रहनुमाओं से अपील करते हुए कहा कि वो वजीर आजम मोदी को खत इरसाल करके 13 रजब विलादत हजरत अली के मौके पर तातील आम का मुतालबा करें। अवधनामा के जहानुमा सफ़े पर शायर रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के वजीर खारिजा मोहम्मद जवाद जरीफ ने सहाफियों से बात करते हुए कहा कि पार्लियामेंट के पास करदा कानून के तहत 23 फरवरी से IAEA की निगरानी में कमी कर दी जाएगी। अलबत्ता निगरानी का अमल मुकम्मल तौर पर बंद नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ईरान ने जो इक़दाम अंजाम दिए हैं वो एटमी मुआहिदे की 36वीं शिक़ के आयन मुताबिक हैं। हम एटमी मुआहिदे में मौजूद हैं और जैसा कि ईरान में आला तरीन सतह पर ऐलान किया गया है कि जैसे ही अमरीका पाबंदियां खत्म करेगा और दूसरे फरीक भी अपने वादों पर अमल करना शुरू करेंगे, तेहरान भी एटमी मुआहिदे की पहले वाली पोजीशन पर वापस लौट आएगा। वाज़ेह रहे कि ईरान की पार्लियामेंट ने 1 दिसंबर 2020 को पाबंदियों के खात्मे का स्ट्रेटेजिक कानून मंजूर किया था, जिसके तहत हुकूमत ईरान को इस बात का पाबंद बनाया गया था कि वो अमरीकी पाबंदियां खत्म न होने की सूरत में एटमी तवानाई की आलमी एजेंसी IAEA के साथ ताउन को महदूद और एटमी मुआहिदे पर अमल दरामद की सतह में मजीद कमी कर दे। म्यांमार में नजरबंद लीडर आंग सान सूची की रिहाई और फौजी जनरलों के खिलाफ जारी मुहिम में शामिल होने वाले बौद्ध भिक्षुओं के एक ग्रुप ने मंगल के रोज म्यांमार की फौज के खिलाफ मार्च किया। मुजाहिरीन ने जमहूरी हुकूमत के हटाने पर मुल्क भर में इंटरनेट की बंदिश के बावजूद मुसलसल दूसरी रात भी एहतजाज जारी रखा। खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक मुजाहिरीन ने कई जगह ट्रेन सर्विस को भी बंद कर दिया। गहरे सुर्ख रंग के लिबासे ओढ़े तकरीबन 20 भिक्षु यंगून शहर की सड़कों पर मार्च करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के सामने पहुंचे और आवाम से कहा कि वो भी एहतजाज में शामिल हों। भिक्षुओं ने एक बैनर उठा रखा था जिस पर अंग्रेजी जबान में तहरीर था, वो भिक्षु जो फौजी आमरीत नहीं चाहते।
डॉक्टर हसन रूहानी ने बुध के रोज काबीना के इजलास में कहा है कि ईरान ने गुज़श्ता कई अशरों के दौरान बारहा इस बात का ऐलान किया है कि दिफाई मंसूबे में एटमी या मुहलिक हथियार शामिल नहीं है, ताहम जौहरी टेक्नोलॉजी के हुसूल की कोशिशें बदस्तूर जारी रहेंगी। उन्होंने कहा कि ईरान रहबर इनकलाब इस्लामी के फतवे पर अमल करता रहा है और आलमी बिरादरी को यह समझ लेना चाहिए कि ईरान ने जो अहद पैमान किया है उसका वो पाबंद है। सदर ममलकत ने इसी तरह बैनुल अक़वामी एटमी मुआहिदे को ईरान और दीगर फरीक मुल्कों की अनथक कोशिशों का नतीजा करार दिया और ताकीद के साथ कहा कि यह मुआहिदा बआसानी हासिल नहीं हुआ है और ईरान इस मुआहिदे को उसकी माजी की ही शक्ल में काबिल अमल समझता है और इस मुआहिदे में कोई तब्दीली नहीं की जा सकती। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की नायब सदर मरियम नवाज ने वजीर आजम और आर्मी चीफ से मुतालबा किया है कि वो लापता अफराद के अहल खाना को आगाह करें कि आया उनके प्यारे जिंदा हैं या मर चुके हैं। लापता अफराद के अहल खाना से मुलाकात के बाद इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि लापता अफराद के लवाहिकीन भी इज्जतदार लोग हैं जो इस्लामाबाद की सड़कों पर सर्दी के मौसम में खुले आसमान तले बैठे हुए हैं, मगर उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। याद है कि चंद बलूच मिसिंग पर्सन के अहल खाना चंद रोज कबल बलूचिस्तान से वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पहुंचे थे, जहां उन्होंने प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी कैंप लगा रखा है। आज ये अहल खाना बतौर एहतजाज डी चौक पर पहुंचे हैं। मरियम नवाज ने हुकूमत को मुखातब करते हुए कहा कि मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि क्या मजबूरियां फर्ज से बड़ी होती हैं? रियासत का फर्ज है, रियासत माँ की तरह होती है। अगर आप उन्हें ज्यादा नहीं बता सकते तो ये तो बता सकते हैं कि वो जिंदा है या मर गए, ताकि उनके दिल को करार आए। अवधनामा ने आज इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की विलादत की मुनासिबत से एक तहरीर शाये की है, जिसमें इमाम अलैहिस्सलाम की सवाने के बास पहलू रोशन हो रहे हैं। उन पहलुओं में से एक नुमाया पहलू हिल्म और बुर्दबारी से नाज़रीन को आशना करने की गरज से चंद सतरें पेश की जा रही हैं। इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम अपने आबा और अजदाद की तरह सख्तियों और परेशानियों में सब्र और तहम्मुल से काम लेते थे और जहाँ तक इस्लाम की मसलहत का तकाजा होता था, आप दुश्मनों, बुरा भला कहने वालों और तौहीन करने वालों के मुकाबले में हिल्म और बुर्दबारी से पेश आते थे। बरिया अब्बासी, जो हुकूमत बनी अब्बास की तरफ से मक्का और मदीना की पेश नमाजी के लिए मंसूब किया गया था, उसने मुतवक्किल के पास इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के बारे में चुगलखोरी करते हुए लिखा, अगर तुम्हें मक्का और मदीना की ज़रूरत है तो अली इब्न मोहम्मद को उनके 2 शहरों से निकाल दो। तो अली इब्न मोहम्मद को उन 2 शहरों से निकाल दो, क्योंकि वो लोगों को अपनी इमामत की तरफ दावत देते हैं और काफ़ी तादाद में लोग उनके पैरोकार हो गए हैं। बरिया की मुसलसल चुगलखोरी और शिकायत की वजह से मुतवक्किल ने इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम को आपके जद्द बुजुर्गवार रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस के पास से दूर कर दिया और जिस वक्त इमाम मदीना मुनव्वरा से सामरा की जानिब सफ़र तय कर रहे थे, बरिया भी आपके हमरा था। बरिया ने सफ़र के दौरान इमाम की तरफ मुतवज्जे होकर कहा, आप खूब अच्छी तरह जानते हैं कि आपके शहर मदीना से निकाले जाने का सबब मैं हूँ। मैं ज़बरदस्त कसम खाकर कह रहा हूँ कि अगर आपने मुतवक्किल या उसके दरबारियों और बेटों के सामने मेरी शिकायत की तो मैं मदीने में मौजूद आपके तमाम दरख्तों में आग लगा दूंगा, आपके गुलामों खादिमों को मार डालूंगा, आपकी खेती के चश्मों को बंद कर दूंगा और आप यकीन जान ले कि मैं यह काम करूंगा। इमाम अलैहिस्सलाम ने इसकी तरफ रुख करके फरमाया, तुम्हारी शिकायत का सबसे करीबी रास्ता खुदा मुताल के पास था और मैंने गुज़िश्ता रात परवरदिगार आलम से तेरी शिकायत कर दी और इसके अलावा अल्लाह के बंदों में किसी के पास नहीं करूँगा। बरिया ने जैसे इमाम अलैहिस्सलाम का एक कलाम सुना, फौरन हज़रत अलैहिस्सलाम का दामन पकड़कर रोने लगा और माफ़ी मांगने लगा। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। दूसरी तहरीर एन शम्स यूनिवर्सिटी काहिरा मिस्र की डॉक्टर वला जमाल अल-असीली की है, जिसमें वो लोगों के इस्तिफसार पर उर्दू ज़बान से रग़बत और मोहब्बत के बारे में तहरीर करते हुए लिखती हैं, इस तरह रकम तराज हैं। मैं अरबी नस्ल हूँ, मिस्र से हूँ, विलादत के एतबार से और तालीम और तरबियत के एतबार से मिस्री हूँ। मेरी मादरी ज़बान अरबी है, उर्दू मेरी इक्तिसाबी ज़बान है। तालिब इल्मी के ज़माने में ही मुझे पता चला कि हिंदी और उर्दू एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। क़वायद की सतह पर उन दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, फ़र्क सिर्फ मुफ़रदात और रस्म ख़त का है। उर्दू पढ़ने के दौरान जब लोग मुझसे पूछते थे कि क्या पढ़ती हैं और ये उर्दू क्या है, तो जवाब देते हुए मैं कुछ झिझक महसूस करती थी, क्योंकि उर्दू का नाम आम मिस्री लोग तो नहीं जानते, मैं भी उन्हीं में शामिल थी।
اردو اپنے نام کی وجہ سے مصر میں زیادہ مانوس نہیں تھی، بہت کم افراد اسے جانتے تھے۔ دوسری زبانوں کی طرح یہ کسی قوم یا کسی خطے یا خطہ ارض کی طرف منسوب نہیں ہے، لیکن یہاں کے لوگ ہندوستان کی طرف نسبت کی وجہ سے ہندی زبان کو جانتے ہیں۔ بہرحال 4 سال میں نے اردو زبان کی تعلیم حاصل کی اور جب نتیجہ سامنے آیا تو مجھے پہلی پوزیشن حاصل ہوئی۔ شعبہ اردو میں 2004 میں میری تقرری ہوئی اور میں نے اردو زبان و ادب کے ساتھ اپنے سفر کا آغاز کیا۔ میں نے اردو زبان و ادب میں ایم اے اور پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ 2009 میں ایم اے میں ایک مقالہ بعنوان سر سید احمد خان کے اخلاقی و اصلاحی مضامین ایک تنقیدی مطالعہ اور پی ایچ ڈی 2013 میں ایک مقالہ بعنوان فہمیدہ ریاض کی شاعری مکمل کیا۔ پھر ڈاکٹریٹ کے بعد شعبہ اردو میں بحیثیت لیکچرر درس و تدریس کے کام میں مصروف ہو گئیں۔ اودنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودنامہ کی ویب سائٹ www.awadnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔ گھر بیٹھے گروسری اور گھر کا سارا سامان فوراً اور پوری ہائیجین کے ساتھ پانے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر 6394027918 پر آرڈر کر سکتے ہیں۔ ہمیں پرکھنے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ایک بار موقع ضرور دیں۔